So in a small oscillation, first thing you have to prepare for one dimensional thing, and that was the part of stability analysis, such that your potential Vx is given by Vx naught plus del V upon del x at x is equal to x naught and x minus x naught by using Taylor expansion about which point? About a stable equilibrium point. 1 by 2 del square V del x square at x is equal to x naught, x minus x naught whole square, and so on. And if x naught is stable equilibrium point, x naught is identified as stable equilibrium point, that means del V upon del x at x is equal to x naught is equal to 0, and del square V del x square at x is equal to x naught is greater than 0. Let's say k, and this is greater than 0. Okay, this k, and where k is greater than 0. Now, एक क्वेश्चन तो इसके ऊपर लगभग हर एक साल के अंदर है. Find the value of omega. What is value of omega? Del square V del x square at x is equal to x naught by m. They will just give you potential and they will just ask you that particle is executing simple harmonic motion about x is equal to 0 or small oscillation about x is equal to x naught, not 0 necessarily. And x naught is your stable equilibrium point. So once you have prepared this thing, you have to also prepare for unstable equilibrium point. What is condition of unstable equilibrium point? The condition is del V upon del x at x is equal to x naught is equal to 0, but del square V upon del x square at x is equal to x naught must be less than 0. So for the oscillatory motion, what you need? You need stable equilibrium point. So this is very important thing that you have to remember. So first thing you have to go for this one. So एक तरह के क्वेश्चंस आपके स्मॉल ऑसिलेशन में आपको इसको प्रिपेयर करना, एंड वी हैव डन लॉट ऑफ क्वेश्चन, और आप अपने बुकलेट में भी देखोगे देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन. ओके, सिंपल, आपको बार बार एक ही चीज नहीं करना है. एग्जाम के समय में एक क्वालिटी क्वेश्चन करो, दैट इज मोर देन एनफ. तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड व्हाट इज योर स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट. यहां से आप निकाल लोगे x is equal to x naught, and after then you can find the value of k and you can easily solve. So this is of one trend. Second, जो आपके एग्जाम का ट्रेंड है और जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर बार एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, either in form of quantum mechanics or in form of classical mechanics, they will surely ask the question, and that is basically what? Action angle variable. So what is your action angle variable? J will be what? Px dx, है ना? और यहां से आप क्या करोगे? J को किसका फंक्शन लिख दोगे? E का फंक्शन लिखोगे, और आप लिख सकते हो E को किसका फंक्शन लिख सकते हो? J का फंक्शन लिख सकते हो. And what is your natural frequency? Is nothing but del E upon del J. इसके ऊपर क्वेश्चंस होने ही होने हैं, आते ही आते हैं, हर साल किसी न किसी रूप में आता है. इसी का यूज आप आगे जाकर WKB में भी कर लेते हो, बोर समरफील्ड में भी करते हो, ये यहाँ क्वांटाइज्ड हो जाता है. बट इन क्लासिकल मैकेनिक्स यू कैन इजिली यूज टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड. तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमने क्या ट्रिक प्लेस किया था, जरा बता सकते हो? बताओ, क्या ट्रिक प्ले करते हैं हम? सर अंदर में जो 2m वाला टर्म E माइनस VX, स्क्वायर वाला टर्म कहां से आ गया? जरूरी थोड़ी है VX स्क्वायर ही हो, है ना? और आप क्या करते हो? यू विल जस्ट प्लॉट डायमेंशनलेस, यू विल जस्ट ट्राई टू मेक दिस इंटीग्रेशन डायमेंशनलेस. अगर प्रोपोर्शनलिटी के टर्म में है तो इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर प्रोपोर्शनलिटी के टर्म में नहीं है तो इंटीग्रेशन आपको करना होगा. अब बाय द वे, इसको हम लोग कैसे पूरा ओपन करते थे, याद है? x1 to
x2 कई बार 4 टाइम लिखते हैं, कई बार 2 टाइम लिखते हैं, उसका क्या रोल होता है? व्हाट इज x1 x2? बताइए। सर जिसमें पार्टिकल मतलब जिस रीजन के अंदर है, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट। ये सर। ठीक है, x1 एंड x2 आर टर्निंग पॉइंट। ठीक है, x1 एंड x2 आर टर्निंग पॉइंट। तो आप टर्निंग पॉइंट को कैसे निकालते हो? हाउ यू आर गेटिंग टर्निंग पॉइंट? काइनेटिक एनर्जी 0 E at is that equal point. to what? px square अपॉन 2m प्लस vx है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, तो x की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो फॉर टर्निंग पॉइंट, ex इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन से आप टर्निंग पॉइंट निकालते हो। और आप 4 से कब मल्टीप्लाई करोगे और 2 से कब मल्टीप्लाई करोगे? व्हेन यू विल सर मल्टीप्लाई विद 4? जब फेज स्पेस जब इलिप्टिकल होगा। कंप्लीट फेज स्पेस हो, कंप्लीट चारों क्वाड्रेंट में फेज स्पेस हो, देन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 4। ओके, सो आप इस तरह के क्वेश्चंस आप इजिली कर सकते हो, है ना? और आपके एग्जाम में आते हैं, तो Vx इज इक्वल टू k mod x, है ना? इस तरह के क्वेश्चंस आप देख सकते हो। लास्ट ईयर एग्जाम में आया था Vx इज इक्वल टू लैम्डा x टू द पावर क्यूब, लेकिन वहां पर एनर्जी क्वांटम मैकेनिक्स के लिए आया था, बट कॉन्सेप्ट इज एग्जैक्टली सेम। ओके, और एक चीज अब आप और ध्यान दो, चूंकि लास्ट ईयर के एग्जाम में लैम्डा के ऊपर चीज आया था कि लैम्डा को 2 लैम्डा कर दे तो एनर्जी क्या होगी, समथिंग लाइक दिस। तो यहां भी आप ये भी चेक कर लो कि आपका के ऊपर क्या डिपेंडेंसी है, हाउ यू आर डिपेंडेंट ऑन के। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं ताकि आप वो सारे चीज को दिमाग में रखो। सपोज यू हैव Vx, let's say Vx is equal to kx to the power 4. Okay, this is your Vx. So what is your plot? Your plot of Vx is something like this, kx. So Vx versus x. और अब आप जब इसे जाओगे तो इसका जो फेज स्पेस बनेगा वो चारों क्वाड्रेंट में होगा। यस, सो आप जब j की वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे? px dx and that value is equal to root under 2m e minus kx to the power 4 dx। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें या 3 से मल्टीप्लाई या 2 से मल्टीप्लाई करें या 1 से मल्टीप्लाई करें? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? तो इसे आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे। जस्ट एक ग्लिम्स दे देता हूं ताकि आप उस जगह पर फोकस करो। देन दिस j विल इक्वल टू 4 टाइम, मीन्स मैं ये एरिया निकाल रहा हूं 0 टू ये पॉइंट क्या होगा? दिस इज योर टर्निंग पॉइंट। सो व्हाट इज दिस पॉइंट? बताओ। E by k to the power 1 by 4. E by k to the power 1 by 4, and this value is 2m e minus k x to the power 4 dx। अब आप यहां पर ध्यान दो, आप जब इसे डायमेंशनलेस बनाओगे तो क्या क्या हो जाएगा? j इज इक्वल टू रूट अंडर 2me इंटू e अपॉन k टू द पावर 1 by 4 और 4 टाइम 0 to 1 1 माइनस t टू द पावर 4 dt। इन जनरल अभी तक जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो J और E के रिलेशन में आ रहे हैं। आप यहां पर K का भी फैक्टर देख लो, है ना, कि K के ऊपर किस तरह से डिपेंडेंट होता है। सो अगर K को मैं 2K कर दूं तो क्या चेंज होगा? और एक्शन के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्योंकि दिस K इज पैरामीटर, सो आपको थोड़ा पैरामीटर को भी लेकर के ध्यान में देना है। अदरवाइज यहां पर J, आप प्रोपोर्शनलिटी के टर्म में देखो, J इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? 3 upon 4 and j is proportional to k to the power minus 1 upon 4। और साथ में आपको एम्पलीट्यूड का भी पार्ट रिमेंबर करना पड़ेगा। व्हाट इज एम्पलीट्यूड हियर? एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे? Sir, E by k to the power 1 by 4. E by, so a is equal to what? E by k to the power
1/4। एम्पलीट्यूड मीन्स व्हाट? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, है ना? इक्विलिब्रियम पॉइंट से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो आप कर सकते हो। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस को आप प्लीज प्रिपेयर करो, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। आपके एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन है ये, किसी भी ढंग के क्वेश्चन ये आ सकते हैं, ठीक है? इन जनरल इसी तरह मॉड के फंक्शन होंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकते हैं, ओके, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स टू द पावर 4 हो सकता है, ठीक है? तो इस तरह से आप चीजों को देख सकते हो, ओके। नाउ सो दिस इज वन पार्ट ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन पार्ट। आइदर टाइम पीरियड निकालने दे सकता है, या तो आपको पोटेंशियल दे देगा, स्मॉल ऑसिलेशन के लिए फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। एंड सेकंड इज ऑल अबाउट योर मैट्रिक्स मेथड। थर्ड थर्ड क्वेश्चन जो आपको इसमें तैयार करना है वो क्या तैयार करना है? मैट्रिक्स मेथड। सो मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड में क्या तैयार करोगे? v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी must be equal to 0, and obviously they will ask you what is your normal frequency, और आप इसको यूज करोगे। व्हाट इज योर v? v क्या होगा? v का मैट्रिक्स एलिमेंट कैसे लिखोगे? व्हाट इज योर v? हाफ v i j eta I eta j। व्हाट इज योर v i j? बताइए, व्हाट इज योर v i j? सर Q1 स्क्वायर वाला जो टर्म था, डेल स्क्वायर v अपॉन डेल ईटा आई ईटा जे। और किस पॉइंट पर आप इसके बात करोगे? ये इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ईटा आई इज इक्वल टू ईटा आई नॉट, ईटा जे इज इक्वल टू ईटा जे डॉट, ठीक है? सो मैंने एक क्वेश्चन आपको क्लास में भी किया था, आप इसको देख लेना। सो दिस इज वेरी नाइस प्रॉब्लम, ठीक है? जेस्ट में आया हुआ प्रॉब्लम है, और जेस्ट में दो तीन बहुत अच्छे प्रॉब्लम है। सो यू कैन जस्ट गो एंड रिवाइज विद द जेस्ट प्रॉब्लम। याद है ये क्वेश्चन किया था हमने? दिस इज एल, सॉरी एल नॉट एंड √2 एल नॉट नेचुरल लेंथ। ये एक्स में ऑसिलेट करेगा, ये वाई में ऑसिलेट करेगा, एंड यू कैन इजिली सॉल्व इट। मैंने पीवाईक्यू में भी अलग से सॉल्व किया है जस्ट के पेपर में, और आप सिर्फ एक क्वेश्चन कर लो, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, या फिर आपको याद होगा? रिमेंबर दिस थिंग, L0/2 के ऊपर दो पेंडुलम है और एक स्प्रिंग कांस्टेंट के है जिसका नेचुरल लेंथ L0 है। तो इसके ऊपर भी हम लोग ने क्वेश्चन किया था, रिमेंबर? इस तरह के प्रॉब्लम को आपको दिमाग में रखना है और इसको आप यूज करोगे, ठीक है? तो यहां पर आपको दो तरह की चीजें को दिमाग में रखना है। फर्स्ट थिंग इज दैट, एक तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा जहां पर आप सिंपल लैग्रेंजियन को देख करके मैट्रिक्स फॉर्म लिख दोगे। बाय द वे, व्हाट इज योर टी मैट्रिक्स? व्हाट इज योर टी मैट्रिक्स? हाफ ईटा, बताइए क्या होगा? आप TIJ ईटा आई ई आई जे ईटा आई डॉट ईटा जे डॉट। व्हाट इज योर टी आई जे? डेल टू टी डेल टू डेल टी ईटा अपॉन डेल ईटा ईटा आई आई डॉट डेल ईटा जी। ईटा जे डॉट, है ना? सो यू हैव टू ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करो आपके पास ये सिस्टम है, क्या इसका पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो क्या? के एम एम, कैन यू राइट द पोटेंशियल एनर्जी? यस सर। बताओ क्या होगा?
half k eta 1 square. Okay, so you can just put this one is eta 1, this one is eta 2. So क्या हो जाएगा V? हाफ k eta 1 स्क्वायर प्लस ये Plus फर्स्ट स्प्रिंग के लिए, सेकंड हाफ half k eta 2 minus eta 1 square. eta 2 माइनस eta 1 स्क्वायर प्लस हाफ k minus eta eta square. माइनस eta 2 स्क्वायर, सो दैट इज eta 2 स्क्वायर, है ना? सो इस तरह के प्रॉब्लम में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इजिली देख सकते हो, ठीक है? यू कैन इजिली राइट दिस थिंग। और इसका आप वी मैट्रिक्स भी बहुत इजिली लिख सकते हो। वी मैट्रिक्स के लिए मैंने क्या सिखाया था? व्हाट स्टेप आई हैव डिस्कस इन द क्लास? So 2 1 2 को 1 2 1 2 में सो वी क्या कर दें? हाफ के ईटा 1 स्क्वायर, और ये क्या 2 टाइम हो जाएगा, सो सॉरी, इसे जब आप ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा? ये v इज इक्वल टू ईटा 1 स्क्वायर यहां से भी आएगा, क्या आ जाएगा? ये हाफ के 2 के ईटा 1 स्क्वायर, है ना, प्लस 2 के ईटा 2 स्क्वायर, क्योंकि हाफ का टर्म हमें रखना है ना, उसे कैंसिल नहीं करना है, रिमेंबर दिस थिंग। और प्लस क्या था आपका? प्लस हाफ के सॉरी माइनस 2 टाइम ईटा 1 ईटा 2, यही होगा ना? सो इसको क्या करना होगा आपको? eta 1 eta 2 eta 2 eta 1 ईटा 2 1 ईटा 2 ईटा 2 ईटा 1 लिखोगे तो इसको क्या सिमेट्रिक बनाओगे? सो दैट वैल्यू इज हाफ 2 के ईटा 1 स्क्वायर प्लस, दिखाई दे रहा है, हाफ 2 के ईटा 2 स्क्वायर माइनस हाफ ईटा 1 ईटा 2 माइनस हाफ ईटा 2 ईटा 1 के साथ, है ना? तो यू विल मेक इट सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज। और फिर आपका वी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? जस्ट मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं आपको। वी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा बताइए? दैट इज 2k माइनस के माइनस के एंड 2k। सो यू हैव टू ऑलवेज, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले का यूज करो, वहां से भी आपको सेम आंसर आएंगे। ये तो एक तरह के क्वेश्चंस है। दूसरी तरह के क्वेश्चंस क्या है? दूसरी तरह के क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको लैग्रेंजियन दिया हुआ रहेगा और आपको क्या करना होगा? जस्ट टेल मी। सपोज लैग्रेंजियन में फंक्शनल फॉर्म आ गए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फॉर एग्जांपल डबल पेंडुलम, इस तरह के प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या किया? फिर जो ये प्रॉब्लम है इसमें अगर आप लैग्रेंजियन लिखोगे तो क्या आएगा? उसमें फंक्शनल फॉर्म में आएगा। देन हाउ यू विल गो फॉर दिस? फॉर एग्जाम्पल डबल पेंडुलम की ही बात करते हैं, है ना? तो डबल पेंडुलम के लिए होप आपको पता होगा लैग्रेंजियन। सो क्या था लैग्रेंजियन हमारा डबल पेंडुलम के लिए? दिस इज योर m1, दिस इज योर m2, दिस इज l1 and this is l2. So what is your Lagrangian? Half m1 l1 square theta 1 dot square plus half m2 l1 square theta 1 dot square l2 square theta 2 dot square plus 2 l1 l2 theta 1 dot theta 2 dot cos theta 1 minus theta 2. This is your kinetic energy. Remember this thing, है ना? और पोटेंशियल एनर्जी क्या था? माइनस m1g l1 cos थीटा 1 माइनस 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 प्लस कर लो m2g l1 cos थीटा 1 प्लस m2g l2 cos थीटा 2। यही था ना? नाउ अब इसको स्मॉल ऑसिलेशन के लिए क्या करोगे? डिस्कस किया है क्लास में, जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं।
क्या करोगे स्मॉल ऑसिलेशन के लिए? कॉस टर्म के जस्ट सेकंड पार्ट भले काइनेटिक एनर्जी में बताओ क्या करेंगे। ये टर्म आपके लिए ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इस टर्म में क्या चेंज करोगे? सर cos θ1 माइनस θ2 को 1 माइनस θ1 इसको माइनस वन θ2 ले लोगे, वन। अगर इसको θ1 के फर्स्ट ऑर्डर तक जाओगे, सेकंड ऑर्डर तक जाओगे, देन इट विल बिकम नॉन लीनियर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये मैंने डिस्कस किया था कि काइनेटिक एनर्जी वाले पार्ट में आपको क्या करना है, वन लेना है, और पोटेंशियल एनर्जी वाले पार्ट में इसे क्या करोगे, 1 माइनस अप टू सेकंड ऑर्डर θ1² बाई फैक्टोरियल 2। इसको भी क्या करोगे, 1 माइनस θ1² बाई फैक्टोरियल 2। इसको क्या करोगे, 1 माइनस θ2² बाई फैक्टोरियल 2। आर गेटिंग माई पॉइंट? अदरवाइज क्या होगा, यहां पर अगर इसके 1 माइनस θ1 माइनस θ2 का होल स्क्वायर ले जाओगे, देन नॉन लिनियरिटी विल कम इनटू पिक्चर। और आप जब इक्वेशन ऑफ, और इन जनरल हार्मोनिक ऑसिलेटर को सॉल्व करने का मतलब क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेटर को सॉल्व करने का मतलब है कि आप इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करो। है कि नहीं? कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि लीनियर होगा। यहां पर सपोज ये Q1 के लिए लिख रहा है तो इस तरह से लीनियर है, लेकिन जैसे ही आप यहां पर डॉट स्क्वायर का टर्म ले आओगे, देन इट विल बिकम नॉन लीनियर, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है सॉल्व करने के लिए। सो व्हाट इज द ट्रिक? ट्रिक ये है कि आप यहां पर ये देखोगे कि ईटा आई एंड ईटा आई डॉट ईटा जे डॉट ईटा आई डॉट ईटा जे डॉट का फॉर्म कैसे मेंटेन होता है, और पोटेंशियल एनर्जी में ईटा आई स्क्वायर और ईटा जे स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ईटा आई इंटू ईटा जे, याद है ना? हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या होगा, हाफ एम एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। सो पोटेंशियल एनर्जी के लिए ईटा आई ईटा जे, और काइनेटिक एनर्जी के लिए ईटा आई डॉट ईटा जे डॉट। दिस इज द फॉर्म ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। जब भी ये फॉर्म मिलेगा कहीं भी, दैट विल ट्रांसफॉर्म इनटू हार्मोनिक ऑसिलेटर। हाफ इज द अनदर थिंग। सो ये आपको इतने तरह के क्वेश्चंस को तैयार करने हैं, और इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है। लास्ट ईयर भी आया था, उसके लास्ट ईयर भी आया था, इस बार भी आ सकता है। सो पूरी लैग्रेंजियन लिखना, और इसमें आएगा तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि इस लैग्रेंजियन को आप रिड्यूस करो स्मॉल ऑसिलेशन के लिए। सो यू हैव टू जस्ट गो फॉर व्हाट, हाउ टू फाइंड द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, और वो आपको सेक्युलर इक्वेशन से निकालेगा। नॉर्मल मोड पे क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, बट यस यू नो हाउ टू फाइंड नॉर्मल मोड। जस्ट एक या दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, इजी। बट अदरवाइज नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो सकता है डबल पेंडुलम के लिए आ जाए, हो सकता है मूविंग पेंडुलम के लिए आ जाए। इस तरह के प्रॉब्लम के लिए नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पूछा जा सकता है। ओके, नाउ दिस इज, तो 3 क्वेश्चंस हम लोग को यहां से तैयार हो रहा है। एक क्वेश्चन कौन सा तैयार हो रहा है, जस्ट पोटेंशियल दिया हुआ है और स्टेबल के अबाउट योर स्मॉल ऑसिलेशन हो रहा है। एक क्वेश्चन वहां से तैयार हो रहा है। दूसरा कहां से तैयार हो रहा है, एक्स एन एंगल प्रिंसिपल का यूज करके टाइम पीरियड निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालना, एम्पलीट्यूड के साथ वेरिएशन देखना, एनर्जी के साथ वेरिएशन देखना, पैरामीटर के साथ वेरिएशन देखना। यहां पर एक क्वेश्चन तैयार होगा। चौथा क्वेश्चन कौन सा तैयार होगा, जिसमें स्प्रिंग का यूज किया हुआ है डायरेक्टली। ओके, सो उस तरह के क्वेश्चंस हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें आपको टेलर एक्सपेंशन काइनेटिक एनर्जी का करना होगा, पोटेंशियल एनर्जी का करना होगा, और आप यूज कर सकते हो। सो इसमें से कोई भी 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, कुछ पूछना है यहां पर, कोई डाउट है? चलिए, सो नेक्स्ट 15 मिनट में हम लोग थोड़ा STR के बारे में बात करें, और फिर आप अपनी कॉपी से जाकर रिवाइज करो। जो भी डाउट्स है वो डाउट आप मुझे सेंड करो, और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, मैं जस्ट आपको ओरिएंट कर रहा हूं, फोकस कर रहा हूं, है ना, कि किधर किधर आपको अपने दिमाग को लगाना है। और आप देखोगे कि जब आप रिवाइज करोगे तो ये सारी चीजों को अगर फोकस करोगे तो आपकी लेवल अपने आप एक स्टेप ऊपर हो जाएगी। ठीक है, so STR, this is very famous. At least 2 question will be from STR. At least 2 question.
सो इसमें तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, है ना? तो क्या क्या फॉर्मूला था, याद है? ये एस है, ये एस डैश है, ये v वेलोसिटी से जा रहा है। सो वेलोसिटी ऑफ एस डैश विथ रेस्पेक्ट टू एस इज v। और कोई पार्टिकल है, ये आपको ux डैश, uy डैश, uj डैश किसके रेस्पेक्ट में है? एस डैश के रेस्पेक्ट में। सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश in I cap direction is ux dash, in j cap direction is ui dash, in k cap direction uj dash। सो पहले तो आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। व्हाट इज योर x इज इक्वल टू व्हाट? बताओ क्या है? गामा एक्स प्राइम माइनस वी टी प्राइम, x डैश प्लस vt t डैश रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर c स्क्वायर। y में कोई भी चेंज नहीं होगा, z में कोई भी चेंज नहीं होगा, एंड t में चेंज होगा, t डैश प्लस v, सॉरी x डैश रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। बेसिकली जो आपको दिमाग में रखना है वो x गामा टाइम पोजीशन सर वी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर, बाई सी स्क्वायर, वी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर। सो बेसिकली आप जो दिमाग में रखोगे वो ये रखोगे कि x डैश प्लस v, and what is this particular v? Velocity of s dash with respect to s into t dash। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। लेकिन अगर s डैश इधर आ जाए, ये आ जाए, तो ये भी चीज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, है ना? ये सिमेट्री को आपको दिमाग में रखना है और आप यूज कर सकते हो। लेकिन इसी के ऊपर हम लोगों ने एनर्जी का भी ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, याद है? बिकॉज वी आर रिवाइजिंग, तो हम लोग एनर्जी के भी ट्रांसफॉर्मेशन को लिख सकते हैं। बताओ तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? ई और px के लिए बताओ क्या था? px इज इक्वल टू px डैश प्लस v ई डैश अपॉन सी स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर सी स्क्वायर। व्हाट इज योर py डैश, व्हाट इज योर pz डैश, एंड व्हाट इज योर e अपॉन सी स्क्वायर का किया था हम लोगों ने, याद है? e अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू e डैश अपॉन सी स्क्वायर प्लस v e डैश अपॉन सी स्क्वायर। सॉरी, सर पी क्या था यहाँ पर? एक्स px डैश अपॉन सी स्क्वायर एंड रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, सो इसको आप हटा सकते हो, सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो दिस e इज इक्वल टू e डैश प्लस v px डैश रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर सी स्क्वायर। मुझे ऐसा लगता है कि अब इसके ऊपर क्वेश्चन खूब आ चुके हैं, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं कि एक फ्रेम से x डैश t डैश दिया हुआ है, या फिर कोई इवेंट हो रहा है जिसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम इंटरवल दिया हुआ है, और आपको दूसरे फ्रेम से टाइम इंटरवल या पोजीशन का डिफरेंस चाहिए। बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आने चाहिए कि एक फ्रेम से मोमेंटम के वेक्टर ये हैं, पोजीशन और एनर्जी की वैल्यू ये है, दूसरे फ्रेम से मोमेंटम क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ये आप इस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इजिली कर सकते हो। सो प्लीज जब भी आप ये तैयार करो तो साथ साथ इस फॉर्मूले को भी तैयार करो, ठीक है? देयर में भी फेयर चांस है ना। नाउ इसके बाद आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो कहां पर फोकस करना है? रिलेटिव स्पीड के ऊपर, है ना। और जैसा कि इस बार जेस्ट के एग्जाम में और इवन जैम के भी एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आने लग गए हैं जो 3 फ्रेम नहीं, अब 4 फ्रेम के बारे में बात कर रहा है। सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस वेरी कॉन्शियसली। सो वेलोसिटी के लिए आपको पता है
व्हाट इज योर यूएक्स? यूएक्स किस फ्रेम से देखते हैं? एस फ्रेम. So that is what? ux dash plus v 1 plus ux dash v upon c square. What is ui? ui dash 1 minus v square c square 1 plus ux dash v upon c square. uj is equal to uj dash 1 minus v square c square 1 plus ux dash v upon c square. सो ये फॉर्मूला आप दिमाग में रखोगे, और आपको मैंने जो एल्गोरिथम दिया था, एल्गोरिथम क्या दिया था? एस, एस डैश एंड पार्टिकल. एस और एस डैश के बीच में क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ एस डैश विद रिस्पेक्ट टू एस. ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एस डैश. आपको हमेशा क्या निकालना होगा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एस. ये आप ऑलवेज ट्राई करोगे निकालने का, है ना? सो हमेशा हम जहां से निकालना है उसे क्या कहेंगे? जहां से निकालना है उसे क्या कहेंगे? एस फ्रेम. एस फ्रेम. जिसका निकालना है उसे क्या कहेंगे? पार्टिकल. और जो बफर होगा, जो दोनों को कनेक्ट करेगा, उसे क्या कहोगे? एस डैश. और उसके बाद अपनी चीजों को आप ट्यून ऑफ करो और आप इजिली सॉल्व कर सकते हो. प्लीज आप ऐसे क्वेश्चन तैयार करके जाओ. इस बार आईआईटी जैम के भी एग्जाम में आ चुके हैं, और पिछले बार जेस्ट के भी एग्जाम में आ चुके हैं. सो प्लीज प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो देयर इज एस फ्रेम. एस के रिस्पेक्ट में ए जो है वो v1 वेलोसिटी से जा रहा है, बी जो है वो v2 वेलोसिटी से जा रहा है. सॉरी, एस के रिस्पेक्ट में. सो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एस इज v1. velocity of B with respect to A is V2, and एक और दे दे रहा है, velocity of C with respect to B is V3. सारे I cap डायरेक्शन में. So then you have to calculate velocity of C with respect to A. कैसे करोगे इसको? बताइए, कैसे करोगे? ए एस के रेस्पेक्ट में है, बी ए के रेस्पेक्ट में है, सी बी के रेस्पेक्ट में. लेट्स से दिस इज V3. कैसे करोगे इसको? पार्टिकल एंड बी इज इंटरमीडिएट एंड ए इज आवर एस फ्रेम. सबसे पहले क्या करोगे? बी का एस के रेस्पेक्ट में निकाल लोगे, है ना? व्हाट यू विल डू? आपको क्या निकालना है? सी का निकालना है एस के फ्रेम में. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सबसे पहले आप किसका निकालोगे? बताइए कैसे इसको अप्रोच करोगे? ये इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं. velocity of B with respect to S. यस, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू एस निकाल लोगे. तो इसका खेल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. और इसके रिस्पेक्ट में ये दिया हुआ है, सॉरी, इसका खेल खत्म हो जाएगा, है ना? Yes, sir. पहले आप इसको रिड्यूस करोगे. फर्स्ट यू विल फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू एस. ये क्या हो जाएगा? निकाल सकते हो? बताओ क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू एस क्या होगा? v1 plus v2 by 1 plus. वेरी गुड. v1 प्लस v2 1 प्लस v1 v2 अपॉन सी स्क्वायर. ठीक है. ये इसमें आपने क्या किया? इसे एस है, ये क्या हो गया? एस डैश हो गया. ये आपका पार्टिकल हो गया. क्लियर है ये? तो आपने निकाल लिया इसे. अब आपका जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो गया. क्या रिड्यूस हो गया? एस, बी और सी, है ना? बी के रेस्पेक्ट में सी क्या दिया हुआ है? v3 बाई, सॉरी v3. और बी का एस के रेस्पेक्ट में आपने निकाल लिया. ये यही है ना? तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू एस. अब आप निकाल सकते हो वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू एस क्या होगा? बताओ. Velocity of b with respect to s. वेरी गुड. वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू एस प्लस v3 एंड 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू एस v3 अपॉन
c², और ये आपको पता है, ये आप लिख सकते हो। सो प्लीज ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर करो। लास्ट ईयर जेस्ट के एग्जाम में आया हुआ है एक ऐसा क्वेश्चन, और इस बार IIT जैम के एग्जाम में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, और हमने दोनों ही के सॉल्यूशन करके आपके वीडियो पर रखे हुए हैं, है ना। मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, डोंट वरी। क्लियर है ये? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन होगा जो कि एस के रेस्पेक्ट में ए जा रहा है, एस के रेस्पेक्ट में बी जा रहा है, ए का बी के रेस्पेक्ट में, बी का ए के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना। अगर ए का बी के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो किसे एस मानोगे? आई जस्ट वांट टू फाइंड वेलोसिटी B को ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। किसे एस मानोगे? B को S मानेंगे, A को हम्म, पार्टिकल मानेंगे। हम्म। ए को एस मान सॉरी, A को S मानेंगे, B ए को को, पार्टिकल मानेंगे। सो ये मान लो सिग्मा आपको कर दो, S ए को एस मानोगे, बी को क्या मानोगे? पार्टिकल, और सिग्मा क्या हो जाएगा? एस S डैश। ठीक है। तो इस तरह से आप चीजों को इजिली कर सकते हो। ठीक है। नाउ ये सब तो आउटडेटेड क्वेश्चन मुझे लग रहा है। ठीक है, मुझे ये सब आउटडेटेड क्वेश्चन आएगा भी तो बिल्कुल एक, अब आएगा तो यही आएगा, डोंट वरी, मैं 100% श्योर हूं। अभी जो सर आपके हाँ बताओ। सर इसमें एक ये था कि मतलब जो भी दिया रहता है, फाइंड हम्म बी विद रिस्पेक्ट टू ए या ए विद रिस्पेक्ट टू हम्म बी, तो हम्म हम लोग उसको ऐसे लिख देते हैं ना वेलोसिटी ऑफ पी और एस करके, तो उससे पता चल जाता है कि हम्म किसको क्या साइन करना है। हम्म। ओके सर। हम्म। आपने क्लास किया हुआ होगा तो आपको पता होगा, है ना। यस सर, यस सर। है ना। ठीक। क्योंकि एस और एस डैश फ्रेम कौन डिसाइड करेगा? हमें डिसाइड करेंगे ना। यस सर। नाउ अभी जो आपके एग्जाम का लास्ट 2 ईयर का ट्रेंड देखोगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम का डॉपलर इफेक्ट। सो आपको डॉपलर इफेक्ट बहुत ही आराम से अलग से तैयार करना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है। याद है मदर फॉर्मूला क्या था? न्यू इज इक्वल टू, बताओ कोई बताइए, मदर फॉर्मूला क्या था? न्यू इज इक्वल टू, B नॉट हाँ, 1 प्लस माइनस B अपॉन न्यू C। नॉट 1 - V² अपॉन C²। और क्या है? मैं अंडर मदर फॉर्मूला की बात कर रहा हूं। नहीं नहीं, गलत है। बताओ सॉटन, व्हाट इज योर मदर फॉर्मूला इन फॉर्म ऑफ थीटा? 1 प्लस, सर मैं भूल गया सर इस फॉर्मूला। सर 1 माइनस कॉस थीटा B अपॉन C। 1 - V/C कॉस कॉस थीटा। थीटा। आपको ये याद रखना है जनाब, अब वो जमाना गया। ठीक है। ओके सर, ओके। आप इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से तैयार करो। और पिछले बार भी डॉपलर इफेक्ट पर क्वेश्चन था आई थिंक, या उसके लास्ट ईयर था। और जेस्ट के एक एग्जाम में डॉपलर इफेक्ट का बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन आया है, वो दोनों मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप उसे जरूर प्रिपेयर करो। नाउ न्यू नॉट क्या है? बताओ न्यू नॉट क्या है? भाई नोटेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ याद रहेगा सोर्स। तभी तो करोगे। सर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स का फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी व्हेन सोर्स इज रेस्ट। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन व्हेन सोर्स इज एट रेस्ट। ठीक है, मींस एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। वी क्या है बताइए? V ऑफ क्या? S प्राइम विद रिस्पेक्ट टू S। एस प्राइम एस, सब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में लिखो। तो स्पीड ऑफ और वेलोसिटी ऑफ सोर्स विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, है ना। ये आपको देख रहे हैं। ये दूसरी बात है कि सोर्स ही मूव करता है, हो सकता है सोर्स किसी और चीज पर रखा हो, ऐसा नहीं हो सकता क्या भाई? ऐसा भी तो हो सकता है। एक
स्पेसशिप है, इसके अंदर ही सोर्स घूम रहा है, और ये स्पेसशिप आपके तरफ जा रहा है u वेलोसिटी से, ये v वेलोसिटी से जा रहा हो, और आप यहाँ बैठे हो, और v वेलोसिटी u के रेस्पेक्ट में दिया है, तो आपके रेस्पेक्ट में इसे निकालना होगा ना। यस सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं देगा, डोंट वरी, बट आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर रखो। v क्या है? v इज velocity of source with respect to observer. And what is theta? What is theta? What is theta? Angle with x-axis. किसका x axis? Apparent angle. Apparent angle to observer. किसके किसके बीच का? V और C के बीच का, है ना? V और रेडिएशन के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी। और आपको पता होगा, मैंने एक डायग्राम भी बनाया था। ये मान लो आपका ऑब्जर्वर है, और ये आपका सोर्स है, रेडिएशन भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। आपका सोर्स इधर जा रहा है, रेडिएशन इधर जा रहा है, थीटा की वैल्यू क्या हो गई? पाई। पाई। यहां पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, रेडिएशन ऐसा है, सोर्स ये है, ये थीटा की वैल्यू क्या हो गई? पाई/2। ये इन लाइन नहीं होगा, है ना? ये दोनों क्या होगा? इन लाइन, दोनों सेम लाइन ऑफ ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर के लाइन में नहीं है। इसे क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स। और इसे क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। इसके अलावा आप किसी भी एंगल पर बात कर सकते हो। ये आपका C है और ये आपका V है, थीटा, है ना? ये आपका V है, ये आपका C है, थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑब्जर्वर की तरफ रेडिएशन आ रहा है, हमेशा दिखाई दे रहा है ना? और सोर्स आगे पीछे होगा, ऑब्जर्वर के परपेंडिकुलर हो सकता है, ऑब्जर्वर से दूर जा सकता है, ऑब्जर्वर के तरफ जाएगा। ये आपको फिगर याद रखना है, ठीक है? और ये ऑब्जर्वर ये थीटा मेजर कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हो सकता है सोर्स के रिस्पेक्ट में ये थीटा डिफरेंट हो। समझ पा रहे हो मेरी बात? सर ये और एक बार से बता। मैं ये बोल रहा हूं कि ये थीटा ये ऑब्जर्वर विजुलाइज कर रहा है। अगर कोई ऑब्जर्वर सोर्स पर बैठा हो तो क्या वो यही थीटा देखेगा? नो नहीं, हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, याद है? एंगल भी चेक किया था, एंगल भी देखा था कि चेंज होता है। आप जाकर के रिवाइज करो वो क्वेश्चन को, कि सोर्स पर बैठा हुआ आदमी जरूरी नहीं कि उसे थीटा देखे, उसे कुछ और देख सकता है। ये आदमी कुछ और थीटा देखेगा। सो दिस इज एपरेंट एंगल टू ऑब्जर्वर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जरूरी नहीं है कि जो सोर्स पर बैठा हुआ आदमी है और सोर्स के रेस्पेक्ट में जो एंगल हो वही एंगल ये देखे। दे आर टू डिफरेंट स्टोरी। तो हमें जो यहां पर फॉर्मूले में यूज करना है वो क्या यूज करना है? ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो थीटा आ रहा है, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी हो रहा है, उसके बारे में बात करना है। प्लीज डू दिस टॉपिक केयरफुली, और इससे क्वेश्चंस होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है, तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस में आपको बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करना है। ओके, सो यू हैव टू गो फॉर कंजर्वेशन of momentum and energy. By the way, what is your relativistic mass? Is m naught c square root under 1 minus v square c square. What is your relativistic momentum? Is m naught v 1 minus v square upon c square. What is your rest mass?
एम नॉट सी स्क्वायर, है ना, सॉरी रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर, ये सब आपको पता है, लेकिन मैग्नीट्यूड के बारे में बात करोगे तो दैट इज एम नॉट वी रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। बाय द वे ये क्या है, नीचे वाला पार्ट क्या है, व्हाट इज दिस वी? सर v of s prime with respect to s, वेलोसिटी है या स्पीड है? नॉट एस विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश, speed सर, speed स्पीड है किसके रेस्पेक्ट में? व्हाट इज वी? ये वी क्या है, ये वी क्या है? सर जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, यस, तो स्पीड ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, कंफ्यूज मत करिएगा एस और एस डैश प्राइम से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज स्पीड, ये है मॉड वी इज नथिंग बट स्पीड। स्पीड का मतलब क्या है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ये आपको ध्यान में रखना है। सो दिस इज योर पर्टिकुलर थिंग। और एक मदर इक्वेशन आपको मिलेगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी फोर। तो आप कई इसमें कॉलिजन प्रॉब्लम होंगे, उसको आप यूज करोगे, और ऑब्लिक कॉलिजन के लिए आप भी आप कर सकते हो, तो एक्स एक्सिस के अलग मोमेंटम लो, वाई एक्सिस के अलग मोमेंटम लो, और एनर्जी तो आपके स्केलर क्वांटिटी होंगे। मींस इस तरह के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ कोई पार्टिकल एम है और लेट से रेस्ट मास एम नॉट है, एक पार्टिकल रेस्ट मास एम नॉट आया, ये एंगल θ1 पे चला गया, ये एंगल θ2 पे चला गया, इसकी मोमेंटम P1 है, इसकी मोमेंटम P2 है, और फिर आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एनर्जी का यूज करके चीजों को इजिली लेकर जा सकते हो। ठीक है, सो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। अब आपके एग्जाम में आएंगे तो ऑब्लिक कोलिजन से ही आएंगे, सो आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब आप एनर्जी की बात कर रहे हो, सो टोटल एनर्जी की बात करोगे। बाय द वे व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? रेस्ट मास एनर्जी माइनस, सॉरी, total व्हाट इज energy काइनेटिक minus एनर्जी? P prime, रिलेटिविस्टिक एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी, so that value is m नॉट सी स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहीं पर आप फोर्स भी देख सकते हो, योर फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, ऑलवेज राइट इन द रिलेटिविस्टिक टर्म इन dp बाई dt के टर्म में लिखोगे, ठीक है, एंड p यू कैन इजिली यूज फ्रॉम देयर। ओके, एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हाँ बताओ क्या, सॉरी, रिलेटिविस्टिक मास की एक्सप्रेशन में ये रेट का सी स्क्वायर नहीं आएगा ना? रिलेटिविस्टिक मास के में क्या नहीं आएगा, ये सॉरी मास सी स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी मैं रिलेटिविस्टिक एनर्जी लिख रहा हूं, है ना, रिलेटिविस्टिक एनर्जी। ओके, ओके रिलेटिविस्टिक एनर्जी। यस सर। सो F इज इक्वल टू डीपी अपॉन dt। जब भी फोर्स की बात हो तो आप प्लीज इस इक्वेशन से शुरू करना, चीजों को सॉल्व करना। dp अपॉन p को क्या यूज करोगे, दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यू हैव टू गो फॉर लेंथ कॉन्ट्रेक्शन, टाइम डायलेशन। लेकिन ये लेंथ कॉन्ट्रेक्शन और टाइम डायलेशन के सारे क्वेश्चंस आप कहां से सॉल्व कर सकते हो, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिक कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन से, है ना। सो बाय द वे व्हाट इज योर लेंथ कॉन्ट्रेक्शन, एल की वैल्यू क्या है, एल नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। लेंथ कॉन्ट्रेक्शन को यूज करने के लिए आपका क्या कंडीशन है, लेंथ कॉन्ट्रेक्शन का यूज करने के लिए कंडीशन क्या था, बताइए। सब करवा चुका हूं, लेंथ कॉन्ट्रेक्शन का यूज करने के लिए कंडीशन क्या है, T2 इज इक्वल टू T1, याद है, तभी तो ये निकला था। yes sir, और टाइम डायलेशन के लिए यूज कर लिए क्या है कंडीशन, length व्हाट इज कंडीशन फॉर टाइम डायलेशन, दिस इज योर प्रॉपर टाइम, दिस इज योर सर प्रॉपर दोनों को लेंथ। व्हाट इज कंडीशन फॉर, ये तो लेंथ कॉन्ट्रेक्शन का टाइम का कंडीशन है, व्हाट इज कंडीशन फॉर टाइम डायलेशन, x2 डैश इज इक्वल टू x1 डैश।
So this is condition for time dilation. This is condition for length contraction. तभी तो ये निकल करके आएगा, अदरवाइज आए डिराइव ही नहीं कर पाओगे. ठीक है. नाउ और आपको एक और सिमेट्री मैंने याद करवाया था, याद है पायोन वाले केस में. यहां पर आपका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, अर्थ, पायोन. अर्थ पर बैठोगे तो क्या दिखाई देगा? लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड और टाइम डायलेशन. अगर पायोन कोई गिर रहा है ना, तो अर्थ पर बैठ करके क्या दिखाई देगा? लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड और टाइम का डायलेशन क्या दिखाई देगा? टाइम डायलेशन. टाइम डायलेशन. और पायोन पर बैठोगे तो और लेंथ का क्या होगा? प्रॉपर लेंथ. सब जाके रिवाइज कीजिए. लेंथ इज प्रॉपर, टाइम इज डायलेटेड. अगर पायोन के रेस्पेक्ट में बैठोगे तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन. लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन और टाइम प्रॉपर. प्रॉपर्टी. तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है. और न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन को इसमें आपको कन्वर्ट किया जा सकता है कि सपोज हाफ लाइफ निकाल लिया न्यूक्लियर फिजिक्स से और फिर आपको उस तरह के कॉलिजन करवाए जा सकते हैं. और या फिर ये देखा जा सकता है कितने समय के बाद उसकी आप विथ रिस्पेक्ट टू लैब उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी. तो आप इसका सीधा यूज कर सकते हो, टाइम डायलेशन का यूज कर सकते हो. ठीक है. सो दिस इज अ बेसिक थिंग. आपको ये बार बार जाके रिवाइज कर लेना है और डिफरेंट टाइप के कुछ अच्छे प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. सो दिस इज फ्रॉम माय साइड ऑफ फर्स्ट 2 पार्ट ऑफ रिवीजन. कल हम लोग इसे कंक्लूड करेंगे और आज मैं आपकी जब न्यूक्लियर की सेशन हो जाएगी तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा जो कि आप चाहो तो उसे सॉल्व कर सकते हो. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू तो सर. कुछ फायदा हो रहा है इससे या फिर नहीं हो रहा है, या फिर ऐसे हो टाइम रहा है. वेस्टेज? हाँ, सर हो रहा है. हो रहा है बहुत ना? कुछ नहीं. हम्म बहुत कुछ ऑन द ठीक स्पॉट से नहीं. क्लिक कर रहा है थोड़ा. ऑन द स्पॉट आप चीजों को पिक करने की आदत हो जाएगी. ठीक है. तो अब जाकर रिवाइज करोगे तो वो सारी चीजों को दिमाग में आता जाएगा, है ना. और जस्ट गो एंड रिवाइज विथ योर कॉपी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. इसी दो को ध्यान में रख के रिवाइज करोगे और जो कल मैंने कहा है उसको किसी तरह एग्जीक्यूट करो. आप देखोगे एग्जाम में आप बहुत अच्छा कर पाओगे. ठीक है. यस सर. ओके, चलो, थैंक यू. कल फिर मिलते हैं. थैंक यू सर.